ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੁਣੀਏ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਇ। ਇਹ ਵੀ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲਿਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਫਿਰ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਤਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਣੀਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਨੀ ਕਿ ਜੋ ਭਗਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਜੋ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਗਮਗੀਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਕਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਾਰ ਦਾ ਗਮ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਫੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਗਮ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਦੀਵੀ ਵਿਗਾਸ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਨਫਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਗਾਸ ਦੇ 'ਚ ਖੇੜੇ ਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦਾ। ਜੋ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਿੜਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੇ 'ਚ ਖਿੜਿਆ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਜੋ ਭਗਤ ਹੈ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣੀਏ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ ਪਾਪ। ਪਾਪ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਬਸ ਉਹੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਔਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਚੋਟ ਪਲਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਪਲਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਨਿਯਮ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ तो इतनी गल स्पष्ट है, दुख भोगन ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ईरानी सूफी संत कह रहे है, यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त। जो तू कर चुके हैं ਉਹਦਾ इलाज मेरे कोल नहीं है। ਇੱਕੋ ਹੀ इलाज है, भोगन ਲਈ ਤਿਆਰ हो जा। यार रा
खुद करदारा इलाज नेस्त, करदनी ख्वाहिश ओ आमदनी पेश। जो तू कर चुके हैं तेरे सामने आवेगा, दुख दे चुके हैं तेरी झोली च दुख वापस आएगा। किसी दी पग लाई है तो तेरे सिर ते सलामत नहीं रहनी। किसी दे रस्ते दा रोड़ा बने तेरे रस्ते च भी कंडे ही कंडे। रब्बी नियम, ईश्वरी नियम। उस भगत दे अंदर इतना विकास क्यों है, खेड़ा क्यों है, सदीवी खुशी क्यों है? उहदे पाप मिट गए ते पाप दे मिटदियां दुख मिट गया, पाप दी छाप मिट गई। हर एक दा भला मंगदा है, बुरा नहीं मंगदा। यतन करके भला करदा है, बुरा करदा नहीं। ना बुरा सोचदा है, ना बुरा करदा है। मिट गई ये धारणा अंदरों। मन दे चों सारी बुराई निकल गई, तन दे चों सारी बुरी कृत निकल गई। ऐसा क्यों? सुनिए, सुनिए दुख पाप का सुनन करके, परमात्मा दा नाम सुनन करके। तर्क खड़ी होवेगी, बड़ा कीर्तन सुने है, बड़ी कथा सुनी है, बड़ी बाणी सुनी है, ना पाप मिटिया। पाप नहीं मिटिया क्योंकि दुखी हाँ तो दुख पैदा हो रहा है पाप तो। दुख दा बीज पाप है और दुख फल है, सुख फल है। अगर दुख सुख फल है तो फिर जरूर इसका कोई बीज है। बिना बीज तो फल किथे? दुख सुख फल है, कर्म बीज है। एक बीज मनुख जमीन दे च बोंदा है, धरती दे च बोंदा है। धरती दा बोया होया बीज ऐसा भी हो सकता है मैं बीजे है, खा कोई होर रहा है, दरख्त मैं लाया है, छां तले कोई होर बैठा है, उहदे फल कोई होर खा रहा है। पर जीवन दी धरती दे जो मनुख कर्म दा बीज बोंदा है वो आप ही खाना पैंदा है। आप बीज आपे ही खा, वो दूजा नहीं खा सकता। मैं बीजे है, मेरा पुत्र वो नहीं खा सकता। मैं बीजे है, मेरा पिता वो नहीं खा सकता। यही कारण है सारी दुनिया दे च धन वधदा जा रहा है, धर्म घटदा जा रहा है। प्यो दा धन पुत्र दा धन हो सकता है, पर प्यो दा धर्म पुत्र दा धर्म नहीं हो सकता। पति दा धन पत्नी दा हो सकता है, पर पति दा जपिया होया नाम ते नाम दा रस पत्नी दा नहीं हो सकता। इस संबंध च मैं कई दफा आप नाल जिक्र किया है, इतिहासिक तत्थ थोड़े सामने रखते हैं। धन गुरु रामदास जी महाराज वक़्त दे अवतारी पुरुष ने, गुरु नानक दी गद्दी दे वारस। उन्हां दा वड्डा साहिबजादा प्रिथी चंद सारी जिंदगी गुरु रामदास जी नाल झगड़दा रहा। फिर बाद दे च अपने छोटे बिराता गुरु अर्जन देव जी नाल झगड़दा रहा। भाई गुरदास जी नूं मीणा आखना पिया। मीणा होया पृथिया कर कर टेढ़क बरल चलाया। और जद बार बार झगड़ा करदा सी गुरु रामदास जी महाराज नाल, सतगुरु समझांदे सन, नहीं समझिया। गुरु रामदास जी का एक शब्द भी है, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यों झगरत पाप। गुरु रामदास जी, ये पाप है तू करदा। एक वक़्त दा अवतारी पुरुष और एक उसे ही अवतार नाल अपने पिता नाल ही झगड़दा है। पिता दी दौलत, धर्म दी दौलत वसीयत दे पुत्र नूं नहीं दिती जा सकती। अगर ऐसा होंदा ते गुरगद्दी ते गुरु नानक श्री चंद नूं बिठांदे, लक्ष्मी दास नूं बिठांदे, लेणे नूं बिठाण दी लोड़ ही नहीं सी।
अपनी संतान मौजूद सी ते लैणे नूं चुणन दी की लोड़ सी। गुरु अमरदास जी महाराज अपने बच्चियां नूं बिठा सकते सन नहीं, ये भी मैं अर्ज कर दें। प्रहलाद धार्मिक है, रब्बी रस नाल भिजिया होया उसका हिरदा श्वास श्वास नाम जपण वाला। और गुरु ग्रंथ साहब तो पुछो नाम किवें जपीए, तो कबीर कहंदे ने राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। 70-80 साल दे बुढ़े रब दा नां इंज जप जिवें 5 साल दे बच्चे प्रहलाद ने जपिया, ध्रुव ने जपिया। कमाल इस बच्चे तो प्रेरणा लई है, और 5 साल दे बच्चे तो। कबीर कहते इंज जप जिवें ध्रुव ने जपिया, इस तरह जप जिवें प्रहलाद ने जपिया। प्रहलाद दी बड़ी कोशिश ये जो रब्बी रस मेरे कोल है, मेरे प्यो कोल भी होवे, तो प्यो कोल नहीं सी। प्यो हरनाकश दुष्ट, पुत्र वकत दा सज्जन भगत, पिता दुष्ट। लेकिन पुत्र भगत है, ये ओ दौलत है वंडी नहीं जा सकती, प्रेरणा दी जा सकती। अगर वंडी भी जा सकती तो दुनिया च इको ही अवतार की लोड़ सी, इतने अवतारां की लोड़ नहीं सी। ये मैं करते हैं, इको ही अवतार ने जगत की झोली च पा देना सी, ते अगों लोकी दूजियां की झोली च पा देंदे नहीं। इस वास्ते एक आलम कहंदा है, हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम लेकिन आदमी अब तक भटकता है। हजारां अवतार आ चुके ने, लेकिन मनुख ते अज भी भटक रहा है। बंदे दे पल्ले ते अज भी धर्म कोई नहीं। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, वाकई जिन्हां कोल रब्बी रस है वो सैकड़ियां च एक दो नहीं, हजारां च एक दो नहीं, करोड़ां च एक दो ने। कोटन में नानक को नारायण जय चीत, कोई बहुत वड्डी गिनती नहीं है। प्रहलाद धार्मिक है, लेकिन रब्बी रस अपने प्यो नूं नहीं दे सके। और प्रहलाद इतना वड्डा भगत है, 4-4 दिन प्यो ने भुखा रखे है, लेकिन ये भुख दे च भी नाम जपदा रहा। लोकी भरे पेट नाल भी नहीं जपते। वो जेल दी तंग तारीक कोठड़ी दे च भी प्रभु दे गीत गांदा रहा, लोकी अपने महलों दे च भी नहीं गांदे। वो तरह तरह दे तसैये सहारदा आया भी प्रभु दा शुकराना करदा रहा। तरह तरह दियां सौगातां प्राप्त करके भी लोकी शुकराना नहीं करते। वो इस तरह दा भगत। उम्र की है 5 साल, तदी ते कबीर कहंदे राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। मीरा धार्मिक है। मीरा दा पति चितौड़गढ़ दा राणा धार्मिक नहीं है, उन्हें घरों ही कढ़ दिता सी। जिन्हां ने इतिहास नूं पढ़िया उन्होंने कहा सी मैनू पत्नी चाहिए, संतनी नहीं चाहिए। इतने मेरी संतनी मेरे पल्ले बन दी। इतने हर वक्त गीत गाती रही है परमात्मा दे। इतने पता नहीं किहड़े लोक दियां गल्लां करती रही। चितौड़गढ़ दे राणे दा मीरा बाई नाल तालमेल नहीं बैठिया, और मीरा हर वक्त प्रार्थना करती सी, हे प्रभु इतना रस तो मेरी झोली च पा दिता है, डुल डुल के पैंदा है, थोड़ा जिहा मेरे पति नूं भी दे दे। प्रार्थना भी करती सी, पर नहीं, उस पति ने ते घरों कढ़ दिता। पहले मारन की कोशिश की जान तो, जहर दा प्याला दिता, पी गई, नहीं मरी। सप भेजिया डंग मारन वास्ते, उन्हें डंग नहीं मारिया, फिर घरों कढ़ दिती। राजस्थान दे जंगलों दे भटकदी रही,
क्योंकि कोई शहर दे च नहीं वड़न देंदा सी, मंदिर दे च दाखिल नहीं होण देंदा सी। दरख्तां तले बैठ के एक तारा वजा के प्रभु दे गीत गांदी रही। जिन्हां जिन्हां दरख्तां दे थले इसने गीत गाए, अज राजस्थान दे उन्हां राजे महाराजियां ते जागीरदारां ने सोने दे मंदिर खड़े कीते ने, सारा मार्बल लाया, सोने दे कलश लाए ने। मीरा धार्मिक सी, उसका पति धार्मिक नहीं सी। त्रिलोचन धार्मिक सी, उसकी पत्नी धार्मिक नहीं सी। एक शब्द त्रिलोचन ने अपनी पत्नी के प्रति उच्चारण किया। त्रिलोचन अमृत वेले उठ के परमात्मा के गुणों का उच्चारण करता है, पर यह भी अमृत वेले नाल उठ के गालां ही कढ़दी है रब नूं। एक परमात्मा की सिफत तो सलाह करता है, एक परमात्मा की निंदा करती है। शब्द है नारायण निंदस काय भूली गवारी, त्रिलोचन जी का। ऐ गवार, ऐ ना समझ, ए की कर दी है अमृत वेले। सिफत तो सलाह का वकत निंदा कर दी है। नारायण निंदस काय भूली गवारी, दुखरत सुकरत थारो कर्मरी, दुखी बहुत सी। तन करके एक रोगी सी ते अधकड़ उम्र हो गई सी, औलाद भी नहीं सी, बच्चा भी नहीं सी। तो कहंदी सी इस नारायण ने की दिता है सानू, इहदे गीत गाइए। रोग दिता है, रोगी तन दिता है ते बे औलाद, औलाद कोई नहीं। की लोड़ है इसकी सिफत सलाह करन दी। त्रिलोचन समझाते ने दुखरत सुकरत थारो कर्मरी, दुख सुख ते तेरे कर्मां दा फल है। दुख सुख ते फल है, ते जे फल है तो उसका बीज है, उसका बीज है तेरे कर्म। ते पहले ही तू दुख भोग रही है ते फिर वो बीज बो रही है जिस तो होर दुख पैदा होगा, और दुख पैदा होगा। समझाते ने त्रिलोचन अपनी पत्नी ने सारा शब्द अपनी पत्नी दे प्रति उच्चारण किया, लेकिन पत्नी भी आखिर त्रिलोचन दी सी। कहन लगी जिस दी बंदगी करन नाल, जिस दे गुण गायन करन नाल कीते कर्म मिट ही नहीं सकते, तो फिर गुण गायन करन दा मतलब की है? सिफतो सलाह कर्म दा मतलब की है? बड़ियां दलीलां दित्तियां त्रिलोचन ने। कीता कर्म नहीं मिटता, कृत कर्म नहीं मिटता। और फिर इस शब्द दी अखीरलियां पंक्तियां, चूंकि इस वक्त प्रकरण नहीं है मेरा। पूर्वलो कृत कर्म न मिटेरी, घर गहन नहीं मिटता। पूर्वलो कृत कर्म न मिटेरी, घर गहन तांचे मो जापी अले राम चे नामंगे। इस वास्ते मैं प्रभु दा नाम जपदा, कर्म ते मिटना ही नहीं। पर त्रिलोचन दी पत्नी आखिर त्रिलोचन दी, ते जे मिटना ही नहीं ते राम जपण दा मतलब, मिटना ही नहीं ते प्रभु दी बंदगी दा मतलब है। प्रभु दी बंदगी मनुख दी सुरत नूं, मनुख दे ध्यान नूं इतना उच्चा कर देंदी है, दुख सुख उसदे पैरां दे थल्लों लंघ जांदे। नहीं ते अक्सर मनुखां नूं किधरे सुख हिला के रख देंदे, किधरे दुख हिला के रख देंदे। कोई सुख करके अयाश ते बदमाश हंकारी हो गया है, कोई दुख करके बेचैन ते बेहाल हो गया है। रस्ते दा रोड़ा बन गया किधरे सुख, रस्ते दा रोड़ा बन गया किधरे दुख। कोई दुखां दे रोड़े नूं नहीं हटा सकिया, कोई सुखां दे रोड़े नूं नहीं, रुक गए ने। पर ओ मनुख कसवटी ते पूरा उतर गया, रोड़ियां दे उपरों लंघ आया है। रोड़े ते कोई गल नहीं, असी रुकना नहीं है। दुख ते कोई गल नहीं, न सुख ने हिलाया न दुख ने हिलाया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे बोल, जो नर दुख में दुख नहीं माने। दुख ते आया है, पर हुण दुख मन नूं नहीं छूंदा। अगर तन नूं छू भी गया तो ठीक है,
ਹੁਣ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਔਕੜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाके। ते सुख नाल कोई इतनी हुण पकड़ भी नहीं रहेगी, कोई बहुती पकड़ भी नहीं रहेगी। नहीं तो अक्सर मनुख की जिंदगी इंज बतीत होती है, दुख सुख करत जन्म फुन मोआ। दुख दे च रोंदा रहा, सुख दे च हसदा रहा, आखिर मर गया। यही मनुख की जिंदगी होर की है। मैनू एक छोटी जी गाथा याद आई है। ईरान के शहनशाह ने किधरे फिरदौसी नूं कहा, मैं सारे संसार दियां इतिहासक घटनावां नूं जानना चाहना। सारे संसार, हर मुल्क, हर कौम विच जो इतिहासक वाक़े होए ने, जो काबिले दीद होवन, काबिले शुनीद होवन, वो मैं जानना चाहना। तू संसार दियां सारियां ये महान घटनावां लिखती रूप विच मेरे सामने लिया। फिरदौसी शायर से और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी फिरदौसी नूं सन्मान देंदे ने। जफरनामा लिखिया है औरंगजेब नूं, जित दी जो चिट्ठी लिखी है, जफरनामे दा मतलब जित दियां चिट्ठियां। ਉਹਦੇ ਚ धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, चे खुश गुफ्त फिरदौसीए खुशतर जवां के जूदी बवद कारे आहिर मना। औरंगजेब चल तो मेरी गल नहीं मननी सी ते ना सही, किसे होर संत महापुरुष की गल नहीं मननी सी ते ना सही, कम से कम तेरा दीनी भिरा इस्लाम नूं मनण वाला फिरदौसी ओदी गल ही मन लैंदा। कितना सोहना उसने लिखा है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। चे खुश गुफ्त फिरदौसीए खुशतर जवां, कितना उसने चंगा लिखे है, कितने चंगे बोल उसने बोले ने, कितना महान दर्श दिता है उसने जगत नूं कि जूदी बवद कार आहिर मना। जल्दबाजी करना शैताना दा काम होंदा है, जल्दबाजी दे ध्यान गहरा नहीं जाता। तू इतना जल्दबाज मनुख है, उसी जल्दबाजी तू अपने प्यो नूं जेल च पाया, उसी जल्दबाजी तू अपने तिन्ने बिराह कतल कीते, उसे जल्दबाजी दे च आके तू अपनी वड्डी बहन जहां आरा नूं गुत्तों धरो के जेल दे च पाया। वो दारे दा पक्ष लैंदी सी, प्यो दा पक्ष लैंदी सी, औरंगजेब दी मुखालफत करदी सी। और मूंह दे उत्ते औरंगजेब नूं उदों गालां कढण लग पई जदों पता चलिया कि औरंगजेब ने दारे नूं भी कतल कर दिता है। दारा फकीर तबीयत बंदा सी, दानी सुभाਅ दा भी सी ते ज्ञानी भी सी, शायर तबीयत भी सी, उसनूं भी कतल कर दिता। ते जद जहां आरा गालां कढण लगी, औरंगजेब नूं झाड़न लगी, गुत्तों धरू के उसनूं भी बंद किया। 7 साल जेल दे च रही है, मरी भी जेल दे च। महाराज कहते ने गुरु गोबिंद सिंह जी, कम से कम तू फिरदौसी दी गल मन लैंदा। जल्दबाजी ते शैतानां दा काम आउंदा है, ते तेरे हर काम दे उत्ते शैतानियत दी मोहर लगी है, क्योंकि तू जल्दबाजी कीती है, गहराई नाल सोचिया ही नहीं, किसी गल दी जो है तह दे जो है तू गया ही नहीं, गहराई दे जो है तू गया ही नहीं, उसनू समझण दी तू कोशिश ही नहीं की। चे खुश गुफ्त फिरदौसीए खुशतर जबां के जूदी बवद कार आहिर मना। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, दुख सुख कसवटी है, कोई दुख ते पूरा नहीं उतरदा, कोई सुख ते पूरा नहीं उतरदा। बथेरियां नूं
ਸੁਖ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਸੁਖਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸੁਖਿਆਰਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਸੁਖਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸੁਖਿਆਰਾ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ, ਕਲੱਬ, ਜੂਏ ਖਾਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। और कोई इतना दुखियारा है, इतना दुखी है, इतना बेचैन हो गया, इतना परेशान हो गया है, गुरुद्वारे आने नूं इसदा जी नहीं करता, दुख इसनूं आण ही नहीं देंदा। कोई दुख दी कसौटी ते पूरा नहीं उतरदा, कोई सुख दी कसौटी ते पूरा नहीं उतरदा, और परमात्मा दी होर कोई कसौटी नहीं है, यही कसौटी है। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोय, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। राम दी कसौटी की है दुख सुख। कोई दुख ते पूरा नहीं उतरदा, कोई सुख ते पूरा नहीं उतरदा। किसी दा सिखी सिदक दुखां दे अथाह जल दे डुब के रह जांदा है, गर्क हो जांदा है। उहदी सिखी गर्क हो गई, उहदा नितनेम डुब गया, उहदी रहत बैत डुब गई, सब कुछ डुब गया। और कोई सुखां दे गर्क होके रह जाता है। गुरु दी मोर डुब गई, गुरु दी रहत बैत डुब गई, नितनेम डुब गया, अमृत वेला डुब गया, सतसंग डुब गया, गुरबाणी दा पाठ डुब गया, सब कुछ गर्क हो गया। किसी दा सुख दे च डुब गया, किसी दा दुख दे च। महाराज गुरु नानक देव जी ते कहंदे ने, मैं ते देखदा हम देखा तैं डुबे हले, सब डुबे पे ने, सब गर्क होए पे ने। किसी नूं सुख ने गर्क करके रख दिता है, किसी नूं दुख ने गर्क करके रख दिता है। दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, कदी दुखी कदी सुखी, कदी सुखी कदी दुखी, आखिर मर गया। फिरदौसी नूं कहा, तू सारे संसार दा इतिहास लिख। उन्हें आख्या, जहां पनाह कम से कम 6 महीने ते चाहिए। तुसी सारे संसार दा इतिहास कहंदे हो, ईरान दे जो तवारीखी घटनावां जे उन्हां नूं भी मैं संग्रह करां, लिखती रूप दियां, ते काफी समा लगेगा। पर सारी दुनिया, सारा जहान, सारी जमीन दे उत्ते जिन्ने मुल्क ने, ते तवारीखी हालात तुसी जानना चाहते हो, कम से कम 6 महीने। बादशाह ने कहा, ठीक है, 6 महीने मैं उड़ीक करांगा, तू सारे संसार दियां इतिहासक घटनावां नूं लिख के ले आवेगा, और मैं उसनूं पढ़ांगा जगत दे अज तक की कुछ होया है। 6 महीनों बाद 10 सैंचियां 10 पोथियां दे रूप विच फिरदौसी ने बादशाह दे अगों पोथियां रख दित्तियां। जहां पना तुसी कहा सी, संसार दा इतिहास अपनी तरफों कोशिश की है। जो मुख मुख हादसे होए ने, जो मुख मुख उपलब्धियां होईयां ने वख वख देशां दे, मैं कलम बंद करने की कोशिश की है। पढ़ो। थब्बा पोथियां दा देख के कह लगा, है तू निरा मैनू वेला ही समझ लिया, यही पढ़दा रहा। छोटा करके लिया, शॉर्ट कर है ना। इतना मेरे को समा किथे, इतना मेरे को वक्त किथे। तू इसका छोटा रूप बना। इतिहास कहता है विचारे नू 4 महीने फिर लगे 10 पोथियां नू 4 पोथियां दी शक्ल देण दे। वड्डे वड्डे हादसात उसने रहन दिते, वड्डे वड्डे उपलब्धियां जो वख वख देशां च होईयां वो ते रहन दित्तियां, बाकी कट4 सैंचियां जद अगों रखियां,
बादशाह कहने लगा अजय भी ज्यादा है, मेरे को वक्त नहीं है, मैं बहुत मसरूफ। शायर अपनी तबीयत नाल लिखदा रहा है, शहनशाह दी अपनी तबीयत, इसनू छोटा कर। भावें फिरदौसी ने उस दिन आख्या जहां पनाह, जो मैं लिख चुकिया उन्हों छोटा करने दे कम से कम 4 गुणा मेहनत होर लगेगी। दुध नू लस्सी बनांदियां देर नहीं लगती, पानी पाई जाओ। दुध नू खोया बनांदियां देर लगेगी, दुध नू घ्यो बनांदियां वक्त लगेगा। ठीक है, होर मैं छोटा करदा। एक किताब की शक्ल दे च लिया, सिर्फ एको ही कॉपी, एको ही किताब। बादशाह ने कहा नहीं, इस तो भी छोटा, ये भी 500 सफियां दी तू पोथी लेके आ गया, मैं नहीं पढ़ सकता, इतना नहीं है समा मेरे को। बेचारा छोटा करन लगा। और शहनशाह दे सुभाव दा भी उसनू पता सी, शायर सी, फकीर सी, पर उसदे सुभाव नू जानदा सी। अज जद महलां दे च दाखिल होया है ते बादशाह बिस्तरे मरग ते पिया, आखिरी दमा ते दम तोड़ रहा सी। शाही तबीब कोल बैठे, फिरदौसी आया, कहंदा शहनशाह मैं संसार दा इतिहास लिख के ले आया, बहुत छोटे रूप विच, बहुत छोटे रूप विच। किथे किताब? उसने हथ कीता अगों, कहंदे नहीं किताब दी लोड़ नहीं, मैं सिर्फ एक लम्हे दे सुना सकदा थानू, एक लम्हे दे भाव, 1 मिनट दे, इतना ही इतिहास है। तो ये बादशाह कहंदा मेरा आखिरी दम टुट जाए, सुना दे, छेती सुना, की इतिहास है। शहनशाह, इतिहास यही है, मनुख जमदे ने, कदी दुखी आउंदे ने, कदी सुखी आउंदे ने, अखीर दे इस तरह दम तोड़ जांदे ने जिवें तू तोड़ रहे, बस यही इतिहास है, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दुख सुख करत जन्म फनम हुआ, चरण शरण गुर आश्रम दिया। महाराज कहते कदी दुख कदी सुख ते मर गए। कदी दुख ने इतना बेहाल कर दिता, जबान ते वाहिगुरु नहीं आया। कदी सुख ने इतना सुखियारा कर दिता, आलसी कर दिता, अमृत वेला खो गया, नितनेम खो गया, जब तब खो गया, अखीर नु मर गए। दुख सुख करत जन्म फनम हुआ, हर मनुख दी यही दास्तान है। इस कथा तो इलावा और की कथा है? कोई दुख करके रुके आया है, कोई सुख करके रुके आया है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते अगर कोई परमात्मा दा नाम सुने, सुख उसनू डोबेगा नहीं, रोड़ा नहीं बनेगा। जनक लई रोड़ा नहीं बनया, महाराजा रणजीत सिंह लई रोड़ा नहीं बनया। राज में राज, जोग में जोगी, ते जो 12 राजा सी ते अंदरों जुड़े होया जोगी सी। भाई गुरदास जैसी आत्मा नू भी कहना पिया, भगत वड्डा राजा जनक है, गुरुमुख माया विच उदासी। राज सिंघासन ने, सोने दे महला ने, तरह तरह के पकवाना ने, धन दौलत ने, परिवार ने, राज सता ने इसनों रोकया नहीं। ये भजन बंदगी करदा रहा। व्यास जैसा ऋषि अपने बच्चे सुखदेव नू कहंदा है, जे तू ज्ञान लेना है किसे कोलों तो जनक कोल लै। सुखदेव कहंदा मैं त्यागी ओ गृहस्थी, मैं फकीर सन्यासी ओ राजा, मैं झुग्गी दे च रह के भिक्षा खाण वाला, ओ तरह तरह के पकवान खाण वाला,
मैं सिर्फ एक कुपीन दे च रहण वाला नंगा, वो तरह तरह के कीमती वस्त्र पहनण वाला, मैं जमीन दे उत्ते लेटण वाला, वो सोने दे सिंघासन ते बैठण वाला, उस कुल में जाके ज्ञान लवां, उस कुल में जाके शिक्षा लवां। मैं सन्यासी, वो गृहस्थी। पता है व्यास ने की आख्या? सुखदेव, वो गृहस्थी होंदियां होयां भी सन्यासी है, तू सन्यासी होंदियां होयां भी गृहस्थी है। तू त्यागी होंदियां होयां भी त्यागी नहीं है, वो ग्रहण करदा होया भी त्यागी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते बिन हौ त्याग कहां को त्यागी, बिन बैराग कहां को बैरागी। परिवार दा त्याग त्याग नहीं है, धन दा त्याग त्याग नहीं है, वस्त्रां दा त्याग त्याग नहीं है, हंकार दा त्याग त्याग है। हंकार दा त्याग निरंकार प्रगट हो जाता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, ये अगर आखिरी सीमा ते आ जाए तो तू प्रगट हो जाता है, परमात्मा प्रगट हो जाता है। जनक इस तरह जी रहे है, तेरे कोल हंकार है, उसदे कोल विनिम्रता है, तेनों ज्ञान उथों लेना पेगा। महाराजे ते सिख जगत दे च बड़े हुए ने, पर जयंती ते बरसी अज भी सिख जगत महाराजा रणजीत सिंह दी मनांदा है। उसने अपने खजानियां दे दरवाजे खोले गुरुद्वारे बनाने लई, और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, किधरे वितकरे वाला बादशाह कोई ना आखे तो मंदिर ते मस्जिदां भी उसी पैसे नाल बणियां। जम्मू दा रघुनाथ मंदिर महाराजा रणजीत सिंह दी देन, विश्वनाथ काशी मंदिर दा सोने दा कलश 1 मन सोना महाराजा रणजीत सिंह दी देन, कुरान शरीफ दा पहला टीका लिखण दा सारा मुआवजा महाराजा रणजीत सिंह दी देन, तमाम इतिहासक अस्थानां नाल जगीर लाणी और उन्होंने उसारना बनाना महाराजा रणजीत सिंह की मेहनत। जिथे बाकी सिख राजे अपनी सिखी नूं ना बचा सके, उथे ये राजा सिखी की खातर अपना राजपाठ भी त्याग करके चला गया। इंज कह लो, सब कुछ कुर्बान किया। इस वास्ते सिख जगत इसे दी जयंती मनाता है, इसे दी जो है बरसी मनाता है। ये राजा होंदे होया भी सन्यासी है। अक्सर सन्यासी होंदे होया भी राजे होंदे ने। खैर मुख्तसर जो है मर्ज करा, जो परमात्मा दा नाम सुनदा है दुख मिट जाते हैं, सुख मिट जाते हैं। भाव दुख सुख रोकते हैं क्योंकि पाप मिट जाते हैं। पर एक ऐसी सौगात है, अगर किसी को प्राप्त हो गई है, इंज हाथ नाल चुक के किसी को नहीं दे सकता। प्रेरणा दे सकता है, शिक्षा दीक्षा दे सकता है। तो शिक्षा दे दे के अवतारी पुरुष थक भी गए ने, भगत थक भी गए ने। फरीद भी कहते ने मैं थक गया। कूकें दियां झांगें दियां मत्ती देंदियां नित, फरीदा जो शैतान मनाइयां से कित फेरन चित। जिन्हां दे मन ते शैतान दा इतना प्रभाव पै गया, इतना प्रभाव पै गया, उसे दे जेर असर जी रहे ने। वो मेरी गल किथे मनदे ने, मैं ते थक गया कह कह के। फरीद मत देंदियां देंदियां थक गया, समझांदियां समझांदियां थक गया। नहीं मनदे लोकी। ये मनुखता पता नहीं कितने अवतार, कितने संत, कितने भगत उन्होंने अपने मकसद विच असफल कर चुकी है। सफल नहीं करन दिता। ये भी मैं अर्ज करते हैं। बड़ी कोशिश सी मुहम्मद साहब दी इस्लाम फैले सारी दुनिया च। इस्लाम दा मतलब अमन सलामती, इन्ना ही सी। उन्हां दा मतलब इन्ना ही सी। मुसलमानां दे होर अर्थ होर भाव कढ़ के
ਸਿਵਾਏ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਇੱਕ ਗੱਲ, पटना साहब तख्त देते एक लीडर पे बोले, हमारे देश की समस्याएं बहुत हैं। क्यों? यहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न धर्म हैं, भिन्न भिन्न वर्ण हैं, तो यहाँ की समस्याएं और मुल्कों से अधिक हैं। इंज कहने लगा, किसी मुल्क दे इक्को ही धर्म है, इक्को ही भाषा है, इक्को ही वरण है, ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੇਖ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਸਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਪੜੋਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਾਰਡਨ ਦੀ ਲੀਬੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਇਰਾਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਰਾਕ ਦੀ ਕੁਵੈਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ। ਇਰਾਕ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਰਾਕੀ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰਥ ਟਕਰਾ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰਥ ਟਕਰਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰਥ ਟਕਰਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਟ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਮੁਹੰਮਦ, ਲੇਕਿਨ 72 ਫਿਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ 72 ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ 72,000 ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰਥ ਟਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਰਬਲ ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਪਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰੋੜੇ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਮਨ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਮਨ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਕਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਰਵਨ। ਕਿਆ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਕਿਆ ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ, ਸੰਤ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਉਖੜਨ, ਦੁਸ਼ਟਪਣੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਉਖੜਨ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ। ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕੋਗੇ क्या ये सब कुछ हो गया? क्या हो गया? इस मनुखता ने, इस बंदे ने पता नहीं कितने कितने अवतारां नूं अपने मकसद दे सफल नहीं होण दिता। मनुख दी तर्जे जिंदगी, मनुख इस ढंग नाल जी रहा है। दूसरी, सारी दुनिया च धन वधदा जा रहा है। एक पति अपना धन पत्नी नूं दे सकदा है, एक पिता पुत्र नूं दे सकदा है, दादा पोतरे नूं दे सकदा है, भरा भरा नूं दे सकदा है। धर्म रब्बी रस मैनू मिलिया मैं किसी नूं दे नहीं सकदा, दूजे नूं मिलिया मैनू नहीं दे सकदा। ये ते ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई। अगलियां पौड़ियां सतगुर खोल देणगे। जिहड़ा जाणदा है सो जाणदा है, वो जना नहीं सकदा। जिहड़ा माणदा है सो माणदा है, वो दूजे नूं दे नहीं सकदा। ये ऐसी दौलत है, खुद कमानी पैंदी है। ये ऐसी दवाई है, खानी भी आप पैंदी है, बनानी भी आप पैंदी है, बाजारों नहीं मिलती। इस वास्ते सुनी है, जो सुनदा है महाराज कहंदे ने उहदे पाप नाश हो जांदे। जद पाप नाश हो जांदे ने, दुख नाश हो जांदे। दुख नाश हो गए, पाप नाश हो गए, इस तो मुराद ये नहीं कि दुख सुख उसनूं आउंदे ही नहीं, आउंदे ने। आम बंदियां नालों ज्यादा आउंदे ने।